جناب والا کریم کے عراق اس بات کے شاہد و عادل ہیں کہ اہل حق کبھی تو 313 1000 کے مقابلے میں نکلتے ہیں تو کبھی سیف اللہ 2.5 لاکھ رومیوں کے ریوٹ کے مقابل 40,000 غلامان محمد کی صف بندی کر کے چشمے پلوں کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں اور دوسرا منزلیں ماتے برق رتا شاہ سواروں کی قسم کوسو دوٹے سمو سے اٹھتی چنگاریوں کی قسم اپنی ناموس کی خاطر اسلام کے نام کی خاطر کسی جنگ میں اگر میں پیٹ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی ناموت کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے مجھے سینہ عرش پر کہیں جگہ نہ ملے طریق اڑاق سے میرا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے اپنے عظیم باؤ جداد کے نام سے اپنے قبیلے کے نام سے مجھے تا ابد کوئی نہ پہچانے صدر علی کا یہ جذبہ یہ جنون جو اپنے انسانی کو ورطہ حیرت میں ڈال دے یہ اس شخص کا تھا جس نے اپنی سانسیں اسلام کی آبادی کے لیے وقف کر دی جو اپنے مقدس مشن سے ہٹ جانے پر موت کو ترجیح دیتا تھا اسلامی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں نو میں اپنے مقدس خون کو لمحہ با لمحہ بہانے والا جس کی جرأت علی کی شجاعت کا عکس تھی اور جس کی تلوار ذوالفقار حیدری کی چمک سے ایسا نور پاتی رہی کہ جس دشمن اسلام نے اس کی جانب دیکھا اس کی آنکھ کچھ اور دیکھنے کے قابل نہ رہی ہاں جناب والا اغوث قبائل کی نسلوں کے مقدر کا ستارہ سلیمان شاہ کا بیٹا غازی ارطغرل جس کی صداقت دیانت جرأت اور اخلاص کو دیکھو تو الفاظ بے سختہ زبان پہ آتے ہیں کہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی عالم کار سلطنت عثمانیہ پہ نگاہ ڈالنے سے پہلے ایک نظر غازی ارطغرل کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اس کی جدوجہد کا اندازہ لگائیے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ غازی ارطغرل جیسا مجاہد یہ کہنے میں حق بچانی تھا کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاہوں پہ لہو چھڑکا ہے پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی صدر علی کا ایک طرف مغولوں کی وحشت اور دوسری طرف صلیبی سازشیں زندگی کے نفوذ پر مشتمل ایک قبیلہ سینکڑوں غداروں کی موجودگی میں ایک عزم لے کر چلتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے جناب صدر ایک عزم لے کر چلتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے مجھے بے ساختہ رب کریم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جسے اقبال نے یوں بیان کیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی جناب صدر میں یہ بات بھی ہند کے معروف پہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ غازی ارطغرل سے ہمارا تعلق محض ڈرامائی حرف نہیں ہے ہمارے ماں بہن جو الفت ہے ہماری نسلوں میں بہنے والے ایمان کی بدولت ہے مگر صدر علی کا یہ لفظ بھی اہل محبت کی سمجھ سکتے ہیں کہ عقل والوں کے نصیب میں کہاں کو نور ایمان سے بڑھ دینے والے اس قادر مطلق رب کے لیے جس نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے توقع غلامی سے نجات بخشی درود و سلام کا نذرانہ بدر و حنین کے سپہ سالار کی بارگاہ میں کہ جن کے در کی آشنائی عرب کے صحرا نشینوں کو دو عالم سے بیگانہ کر گئے اور انہوں نے پہاڑوں کے جگر چاک کر دیے سمندروں کا اپنے تابع کیا دریاؤں میں گھوڑے اڑائے جہاں تک کہ پوری دنیا کو مسحور کر لیا جناب والا تاریخ کے عراق اس بات پہ شاہد و عادل ہے کہ اہل حق کبھی تو 313 1000 کے مقابلے میں نکلتے ہیں تو کبھی سیف اللہ 2.5 لاکھ رومیوں کے ریوٹ کے مدے مقابل 40,000 غلامان محمد کی صف بندی کر کے چشمے پلوں کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں اور دنیا پر یہ عیاں کر دیتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تاب بلڑتا ہے سپاہی جناب والا اہل اسلام کی تاریخ میں ہمت و توکل کے وہ ناقابل یقین منظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جب طارق نامی ایک مجاہد اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ کشتیوں کو آگ لگا دو ہم فتح
से ईंट बजा के रखती, ईंट से ईंट बजा के रखती। जनाबे वाला इन गाजियान इस्लाम की सर बुलंदी के तस्करे अकले इंसान को गुम कर देता है और बंदा पे एहतियात से कह उठता है कि ऐ मेरे मालिक व खालिक, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से कटती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। हयाबा में है मुंतजर लाला कब से, तो बाचा है इसको मुने अरब से। क्या तूने सहरा नशैनों को यकता, खबर में नजर में अजाने सहर में, तलब जिसकी सदियों थे जिंदगी को, वो सोज उसने पाया उन्हीं के जिगर में। और दूसरी जानब जब असूकत मायूसियों में गिरे हुए आदमी इस्लाम की मौजूदा हालत देखती हूँ, तो बेएहतार दिले शिकस्ता से अपने करीम मालिक के हुजूर मनाजात बुलंद होती है कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कलब को गरमा दे, रुख को तड़पा दे। और ऐ करीम अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई। मुनाफिन व किराम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। अनवान गुफ्तगू डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये मिसरा है। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे सदर अली वकार। अगर इसे उसी पराए में बयान करूं जिस पराए में शायर मशरिक ने इसे लिखा, तो मेरी गुफ्तगू खुद मुतब्बर हो जाएगी। शायर मशरिक ने एक नज़म अंदस मैदान जंग में तारक की दुआ के अनवान से लिखी, जिसका आगाज इसी मिसरे से है। फरमाया, लिखते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे। जनाब सदर, मैं सोच रही थी क्यों ना गुफ्तगू भी इसी मुतब्बर हस्ती के नाम से मंसूब कर दूं जिसके नाम से ये मिसरा मंसूब किया है। यहाँ जनाबे वाला इस्लामी तरीका एक रोशन बाप, एक दरशंदा सितारा, इस्लामी दुनिया का हीरो, अफवाज मंदी का सिपा सलार तारक बिन ज़ियाद। जनाब सदर, उंदलस की सरजमीन पर उतरने वाला गाज़बान इस्लाम का लश्कर जज्बा शहादत लबरेज अपने सिपा सलार के सामने हदायत का मुंतजर था कि अचानक इस्लामी सिपा सलार की आवाज़ गूंजी, ऐ दीन इस्लाम के हादमों, कश्तियाँ जला डालो, हम अदल का परचम हराए बगैर हरगिज़ वापस नहीं जाएंगे। अगर ये न कर सके तो शहादत हमारा मुकद्दर होगी। जनाब सदर, चंद लम्हों में कश्तियों से उड़ता धुआं हर जानब फैलने लगा था। ये कैसा जज्बा था जिसे देख के चश्म फलक वरता हैरत में गुम थी। फलक लूस चोटियां लर्ज उठी थी। सिपा सलार ने इस्लाम के मानने वालों को शौके शहादत देखा और खुदा से हम कलाम हुआ और कहने लगा, मेरे मौला, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पार इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई। हयाबा में लाला कब से, कबा चाहे इसको हुने अरब से। क्या तूने सहरान शीतों को यकता, खबर में नज़र में अजाने सहर में। तलब जिसकी थी सदियों से जिंदगी को, वो सोच उसने बाया उन्हीं के जिगर से। वस्सलाम, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिले मारते बड़क रफ्तार शाह सवारों की कसम, कोसों दौड़ते समूह से उड़ती चंगारियों की कसम। अपनी नामूस की खातर, इस्लाफ के नाम की खातर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नो आमोज की शमशीर से नेस्तो नाबूद कर दे। मुझे सीना अर्ज पर कहीं जगह ना मिले, तारीख के वड़क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट
मिट जाए, अपने अजीम बाओजदाद के नाम से, अपने कबीले के नाम से मुझे ताअबद कोई ना पहचाने। सदर अली वकार, ये जज्बा, ये जुनून जो अक्ल इंसानी को वर्ता हैरत में डाल दे, ये उस शख्स का था जिसने अपनी सांसें इस्लाम की आबादी के लिए वक्फ कर दी, जो अपने मुकद्दस मिशन से हर जाने पर मौत को तरजीह देता था। इस्लामी दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद नौ में मुकद्दस खून को लम्हा लम्हा बहाने वाला, जिसकी जुर्रत अली की शुजाअत का असली और जिसकी तलवार ज़ुल्फ़ार हैदरी की चमक से ऐसा नूर पाती रही कि जिस दुश्मन इस्लाम ने इसकी जानब देखा, इसकी आंख कुछ और देखने के काबिल ही न रही। हाँ जनाब वाला, और वो कबाइल की नस्लों के मुकद्दर का सितारा सुलेमान शाह का बेटा गाज़ी अर्तुगरुल, जिसकी सदाकत, जिसकी दियानत, जिसकी जुर्रत, जिसके खिलाफ वो देखो तो ये अल्फाज़ बेसाख्त ज़ुबान पे आते हैं कि गाज़ी तेरे नाम से मिस्रा में पुर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, करीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, अली वकार उतरने वाला आसमां पर निगाह डालने से पहले एक नज़र एक गाज़ी अर्तुगरुल की जिंदगी का मुताला कीजिए, इसकी जदोजहद का अंदाज़ा लगाइए, तो आप भी ये महसूस करेंगे कि गाज़ी अर्तुगरुल हम अदल का परचम लहराए बगैर हरगिज़ वापस नहीं जाएंगे। अगर ये न कर सके तो शहादत हमारा मुकद्दर होगी। जनाब सदर, चंद लम्हों में कस्तूरी उड़ता धुआं हर जन्म फैलने लगा था। एक ऐसा जज्बा था जिसे देख के चश्म पलक बढ़ता हैरत में गुम थी, पलक फ्लू चोटियां लर्ज़ उठी थी। सिपा सलाम इस्लाम के मानने वालों को शौक़े शहादत देखा तो उदास से हम खिला हुआ और कहने लगा, मेरे मौला एक कबीला सैकड़ों गिरदारों की मौजूदगी में एक अज़म लेकर चलता है और कामयाब हो जाता है। तो मुझे भी बेसाख्ता अपने रब करीम का वो वादा याद आता है जिसे इकबाल ने यूं बयान किया कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को रुक सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अरबी। जनाब सदर, मैं ये बात हिंद के मारूफ में वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि गाज़ी अर्तुगरुल से हमारा ताल्लुक महज़ ड्रामाई हरगिज़ नहीं है। हमारे माबैन जो उल्फत है हमारी नस्लों में बहने वाला ईमान की बदौलत है, मगर सदर अली वकार ये रमज भी अहले मोहब्बत यही समझ सकते हैं कि इश्क वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। जनाब सदर, आज इस्लाम के निहलस्तान की उजड़ी हालत देखती हूँ, अपने इस्लाम से रूहानी दौरी को महसूस करती हूँ तो अपने रब करीम से दुआ को हाथ उड़ा देती हूँ। ऐ मेरे करीम, इता इस्लाम का जज्बा दरू कर, शरीके जुमरा ला यहज़ुनू कर, हिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला समझे साहबे जनू कर, मेरे मौला मुझे साहबे जनू कर। ये गाजी तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई। अनवाने गुफ्तगू डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का ये मिसरा है, ये गाज़ी ये तेरे पुरअसरार बंदे। सदर अली वकार, अगर इसे उसी प्राइम में बयान करूं, इस प्राइम में चाहे मशरिक ने इसे लिखा तो मेरी गुफ्तगू उन मोतबर हो जाएगी। चाहे मशरिक ने एक नज़म अंदलस के मैदान जंग में तारिक की दुआ के अनवान से लिखी, जिसका आगाज इसी मिसरे से फरमाया, ये गाज़ी ये तेरे पुरअसरार बंदे। जनाब सदर, मैं सोच रही थी क्यों ना गुफ्तगू भी इसी मोतबर हस्ती के नाम से मंसूब कर दूं जिसके नाम से मिसरा मंसूब किया है। या जनाब वाला इस्लामी तरीके एक रोशन बाप, एक रोशनदार सितारा, इस्लामी दुनिया का हीरो, अब्बाज मोहम्मद का सिपा सलार, तारिक बिन ज़ियाद। जनाब सदर, उंदस की सरजमीन उतरने वाला गाज़बान इस्लाम का लश्कर,
जज्बा शहादत लबरेज अपने सिपा सलार के सामने हदायत का मुजरा अचानक इस्लामी सिपा सलार की आवाज गूंजी, ऐ दीन इस्लाम के हादमों कश्तियां जला डालो, हम अदल का परचम हराए बगैर हरगिज वापस नहीं जाएंगे। अगर ये न कर सके तो शहादत हमारा मुकद्दर होगी। जनाब सदर चंद लम्हों में कश्तियों से उड़ता धुआं हर जानब फैलने लगा था। ये कैसा जज्बा था जिसे देख के चश्म पलक बढ़ता हैरत में गुम थी। पलक फ्लूर चोटियां लड़ उठी थी। सिपा सलाम इस्लाम के मानने वालों को शौके शहादत देखा तो उदास से हम गुलाम हुआ और कहने लगा, मेरे मौला ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ये गाजी वो नहीं पीटो कर से सहरा हो दरिया सिमट कर पहाड़ की हैबत से राई तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई हयावा में लाला कब से कबा चाहे इसको उन्हें अरब से हयावा में लाला कब से कबा चाहे इसको उन्हें अरब से खबर में नजर में अज़ाने इस्लाम के मुजाहिद थे कि नूरे खुदा है वो कुफर की हरकत पे अंदाज़ा नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे अंदाज़ा फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा। नबी सदर सच कहूँ तो आजकल हमारा मुकाल है सयाद करके हमारी गन्ने पहल से बुलंद हो गई है। काश हम अपने माजी को फकत याद ही न करें, इसके तज़किरों में लफ्ज़ी तौर पे गुम ही न रहे, बल्कि नबी सदर मैं गैरतमंद अहले इस्लाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ जो अब्दुल गाजी और इसकी नस्ल को अपना हीरो माना करते थे कि आओ हम अपने इस्लाम की इज्जत से रहनुमाई पाकर सरबुलंदी के लिए जान जाने अफरीद के सुपुर्द कर दें ताकि हमारा ताल्लुक अपने इस्लाम के साथ और भी मजबूत और तर हो जाए। नबी सदर गुफ्तगू वांडप करती हूँ इस दुआ के साथ ता इस्लाम का जज्बा दरू कर शरीके जुमराए ला ज़हनू कर हिंद की गुठियाँ सुलझा चुका है मेरे मौला मुझे सहबे जनू कर। जिसने अपनी जान से इस्लाम की आबादी के लिए वक़्फ़ कर दी, जो अपने मुकद्दस मिशन से हट जाने पर मौत को तरजीह देता रहा। सदर सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद नौ में अपने मुकद्दस खून को लम्हा बलम्हा बहाने वाला, जिसकी जुर्त अली की शुजात का अक्स थी और जिसकी तलवार जुल्फ़कार हैदरी की चमक से ऐसा नूर पाती कि जिस दुश्मन इस्लाम ने भी इसकी जानिब देखा उसकी आंख को छोड़ देखने के काबिल न रही। हाँ जनाब वाला आगोज कबाइल की नस्लों के मुकद्दर का सितारा सुलेमान शाह का बेटा गाजी अर्तुगरुल, जिसकी सदाकत जिसकी दयानत और इखलास को देखूं तो ये अल्फाज बेसाहता ज़बां पे आते हैं कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े हुदाई। दोनीमिन की ठोकर से सेहरा और दरिया, दोनीमिन की ठोकर से सेहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बस से राई। सदर वकार सल्तनत उस्मानिया पे निगाह डालने से पहले एक नज़र गाजी अर्तुगरुल की जिंदगी का मतालिया कीजिए, इसकी जद्दोजहद का अंदाज़ा लगाइए तो आप महसूस करेंगे कि गाजी अर्तुगरुल ये कहने में हक बजानिब है कि हमने सूखी हुई शाहों पे लहू छिड़का है, हमने सूखी हुई शाहों पे लहू छिड़का है, फूल अगर अब भी न खिलते तो क़यामत होती, फूल अगर अब भी न खिलते तो क़यामत होती। सदर वकार एक तरफ मंगोलों की वहशत और दूसरी तरफ सलेबी साजिशें, गिनती के नफूस पर मुश्तमिल एक कबीला सैकड़ों गद्दारों की मौजूदगी में एक अज़म लेकर चलता है और वो कामयाब हो जाता है तो मुझे बेसाहता अपने रब का वो वादा याद आता है जिसे
اقبال نے یوں بیان کیا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں در بوجھے قطار اندر قطار اندر۔ جناب صدر، میں یہ بات بھی ہند کے مادی پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ غازی اکتوبر سے ہمارا تعلق محض ڈرامائی ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے مابین جو الفت ہے وہ ہماری نسلوں میں بہنے والے ایمان کی بدولت ہے۔ مگر صدر عظیم یہ رمز بھی اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والے ہیں جو ہر چیز بتا دیتے ہیں۔ جس نے اپنی سانسیں اسلام کی آبیادی کے لیے وقف کر دی، جو اپنے مقدس مشن سے ہٹ جانے پر موت کو ترجیح دیتا تھا، اسلامی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں نو میں اپنے مقدس خون کو لمحہ با لمحہ بہانے والا، جس کی جرأت علی کی شجاعت کا عکس تھی اور جس کی تلوار ذوالفقار حیدری کی چمک سے ایسا نور پاتی رہی کہ جس دشمن اسلام نے اس کی جانب دیکھا اس کی آنکھ کچھ اور دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ ہاں جناب والا، اغوث قبائل کی نسلوں کے مقدس کا ستارہ سلیمان شاہ کا بیٹا غازی ارطغرل، جس کی صداقت، دیانت، جرأت اور اخلاص کو دیکھے تو الفاظ میں سختہ زبان پہ آتے ہیں کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو گیا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی۔ زندان سے ڈر لگتا ہے۔ جناب صدر، معزز استاد اکرام اور میرے مقدر ساتھیوں، السلام علیکم۔ اس کی جدوجہد کا اندازہ لگائیے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ غازی ارطغرل جیسا مجاہد ایک اہل حق بچانی تھا کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاہوں پہ لہو چھڑکا ہے۔ پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی۔ صدر الفقار، ایک طرف مغولوں کی وحشت اور دوسری طرف سلیبی سازشیں، جن کی نفوس پر مشتمل ایک قبیلہ سینکڑوں غداروں کی موجودگی میں ایک عزم لے کر چلتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جناب صدر، ایک عزم لے کر چلتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے یاد آتا جسے اقبال نے یوں بیان کیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی۔ جناب صدر، میں یہ بات بھی ہند کے ماروں پہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ غازی ارطغرل سے ہمارا تعلق محض ڈرامائی ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے مابین جو الفت ہے ہماری نسلوں میں بہنے والے ایمان کی بدولت ہے۔ مگر صدر الفقار، یہ رمز بھی اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں۔ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ صدر غازی آج اسلام کے نہلکار کی اجری حالت دیکھتی ہوں، اپنے اسلام سے روحانی دوری کو محسوس کرتی ہوں تو اپنے رب کریم سے دعا کو ہاتھ اٹھا دیتی ہوں کہ اے میرے کریم، عطا اسلام کا جذبہ درو کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، ہند کی گتھیاں سلجھا چکا میں، ہند کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے زندگی اور موت کائنات میں سب سے بڑی حقیقت ہے۔ زندگی سے عشق اور موت کا خوف کسی وضاحت کا طالب نہیں، یہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ایک جذبہ ہے۔ مگر صدر علی وقار، میں آج تذکرہ کروں گی ان کا جن کے لیے اقبال نے کہا قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ علی وقار، بدر کے 313 غازیان اسلام سے لے کر ملک شام کی سرزمین پر لڑی جانے والی جنگ یرموک تک، خالد بن ولید کی تلوار کی جنکار سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلیبیوں پر قائم دہشت اور ہیبت تک، اور پھر یہی نہیں جناب صدر بلکہ اغوث اقبال کی نسلوں کی اس پکار کے یا آزادی
यहाँ शहादत से लेकर कुस्तुनतुनिया की फतह तक और इस दौरान सोमनाथ के मंदिरों से उठती ब्रह्मणे ज़ादों की चीहो पुकार तक वो लाखों फर्जंदाने तौहीद जो जिस कदर इश्क अपनी जिंदगी से करते थे, जो जिस कदर इश्क अपनी जिंदगी से करते थे, इससे कहीं बढ़कर वो अपनी मौत को अपने सीने से लगाने के लिए बेताब नजर आते थे। नाबे सदर ये कैसा नशा था, नाबे सदर ये कैसा नशा था, ये कैसा इश्क था, ये कौन सी मैं थी जो इनके दिलों को दो आलम से बेगाना करगी, जो इन दिलों को दो आलम से बेगाना करगी। नाबे सदर इसकी अजमत के क्या कहने, जो जिंदगी को अपने मकसद के सामने की जाने और मौत को अजीज रखे, तो फिर हैरत नहीं कि ऐसे शख्स के सामने पहाड़ अपने वजूद को रेजा रेजा होता महसूस करे, समुंदर उनकी एक निगाहे गज़ब के सामने हिद जाने और हमें इनके लिए ये कहना पड़े, ये गाजी तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े हुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। नाबे सदर अर्तुगरुल गाजी जिन्हें अहराजे तहसीन पेश करने के लिए इस मुकाबले का इनाकात किया गया है, बिला शोबा मर्दाने पाकबाज में से एक थे, जिनके अमल का मियार मुसलहते वक्त नहीं रज़ाए इलाही हुआ करता है, और जो इस पे यकीनो कामिल रखते वाले इस्लाम के मजाहद थे कि नूरे हुदा है कुफर की हरकत पे अंदाज़न, नूरे हुदा है कुफर की हरकत पे अंदाज़न, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। नबे सदर सच कहूँ तो अर्तकल हमारा वो कल है जिसे याद करके हमारी गन्ने फहर से बुलंद हो गई है, काश हम अपने माजी को फकत याद ही ना करें, इसके तज़करों में लफ्जी तौर पे गुम ही ना रहे, बल्कि नबे सदर मैं इनकी गैरतमंद अहले इस्लाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ जो अर्तुगरुल गाजी और इसकी नस्ल को अपना हीरो माना करते थे कि आओ हम अपने इस्लाफ की इज्जत से रहनुमाई पाकर सरबुलंदी के लिए जाने अफरीद के सपुर्द कर दे, ताकि हमारा ताल्लुक अपने इस्लाफ के साथ और भी मजबूतो तर हो जाए। मैं सदर गुफ्तगू वाइंड अप करती हूँ इस दुआ के साथ, ता इस्लाफ का जज्बा दरू कर शरीके जुमराए ला जहनू कर, हिंद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे सहबे जनू कर। वस्सलाम, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े हुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ की हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़त अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, हाकी है मगर हाक से आजाद है मोमिन, हाकी है मगर हाक से आजाद है मोमिन। सदे अजीज़ान एक हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है और तारीखें और राज भी इस बात से शायद आदी है कि जब कभी किसी नमरूद ने जन्म लिया और अपनी ताकत के नशे में मुब्तला होकर हक से आजमा वाले की कोशिश की, तो इस कायनात के मालिक और मालिक ने इसके गुरूर को पास करने के लिए इब्राहीम को भेजा। हाँ फरमाने वक्त के लिए एक मूसा तहरीर फरमाया, जनाबे वाला जब इंसानियत दम तोड़ने लगी और हाथ जहाँ अपने पंजे गाड़े तो खालिक करीम ने अपने महबूब को नाज़िल फरमाया और इनके दर में मोहब्बत से वाबस्ता होकर अबू बकर और अली उस्मान व उज़ैर जैसे कुदरत के शहंशाह जन्म लेने लगे। और जनाबे वाला फिर आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आने के बाद जब भी कुफर के ऐवानों से कोई साजिश आने इस्लाम की जानिब बढ़ी तो इसका मुकाबला करने के लिए
गाज़ियाने इस्लाम अपने सीने तान कर खड़े रहे। जनाब सदर, जब मंगोलों वहशी चंगेज़ी लहजे में दहाड़ने लगे, और नस्ल चंगेज़ खोपरों के मीनार तमीर करने लगे और मुसलमानों के खून की नदियां बहाने लगे, तो जब एक मजहब नमूदार हुआ जिसका नाम गाज़ी मोहम्मद अतगुल था। इस मर्द कलंदर ने ताकत में कम होने के बावजूद मंगोलों और सलीबियों के जालिम मसाइल को तोड़ डाला, और साबित किया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेटैब भी लगता है सिपाही, मोमिन है तो बेटैब भी लगता है सिपाही। और एक ऐसी सल्तनत की बुनियादें उन्होंने की जो उनके चलते रहते मुसलमान का रहबर पेशवा बनी, जिसने बातिल के ईमानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया, और पूरी कायनात में फैले कुफर के साम्राज्य का सीना चीरकर गाज़ी अब्दुल ने आलम इस्लाम को एक नई सिमत अता की और मुसलमानों को यकीन दिलाया कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत में इमदादन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जनाब वाला, ये कानून कुदरत है कि जब कभी बातिल से उठाएगा और उसको नाबूद करने के लिए गाज़ियाने इस्लाम सख्त नजर आएंगे। इसीलिए तो इल्लामा इकबाल ने कहा था, ये गाज़ी ये तेरे पूरे इसरार बंदे, ये गाज़ी ये तेरे पूरे इसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, ज़मीन की ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हर बस से राई, दो आलिम से करती है बेगाना दिल को, दो आलिम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशिना, अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशिना। इस मुकाबले का इनाकाद किया गया है। बिला शोबा मर्दाने पाकबाज में से एक थे जिनके अमल का मियार मुसलहते वक्त नहीं रज़ाए इलाही हुआ करता है, और जो इस पे यकीनो कामिल रखने वाले अजीम जाहत थे कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे अंदाज़न फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा। नब सदर, सच कहूँ तो अर्तकल हमारा वो कल है जिसे याद करके हमारी गन्ने फहर से बुलंद हो गई है। काश हम अपने माजी को फकत याद ही ना करें, काश हम अपने माजी को फकत याद ही ना करें, इसके तज़करों में लफ्जी तौर पे गुम ही ना रहे, बल्कि जनाब सदर मैं उनकी गैरतमंद अहले इस्लाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ जो अर्तगल्लाजी और इसकी असल को अपना हीरो मानते हैं कि आओ हम अपने इस्लाम की जिसत से रहनुमाई पा के सर बुलंदी के लिए जान जाए अफरीद के स्पुर्द कर दे, ताकि हमारा ताल्लुक अपने इस्लाम से और भी मजबूत तर हो जाए। जनाब सदर, गुफ्तगू वाइंड अप करती हूँ। अता इस्लाम का जज्बा दरू कर, शरीके जुमराए ला जहनू कर, गुत्थ की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे सहबे जनू कर। अस्सलाम इस्लाफ का जज्बा दरू कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, हिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, हिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर। वस्सलाम, शुक्रिया। रहमान रहीम, हो हल्काए यारा तो बरे शम की तरह नरम, हो हल्काए यारा तो बरे शम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, हाकी है मगर हाक से आज़ाद है मोमिन, हाकी है मगर हाक से आज़ाद है मोमिन। सदर अज़ीज़कार, एक हकीकत रोज़े रोशन की तरह अया है, और तारीखें और रात भी इस बात पे शायद आदि हैं कि जब कभी किसी नमरून ने जन्म लिया
और अपनी ताकत के नशे में मुब्तला होकर हक से नमद आजमा होने की कोशिश की तो इस कायनात के खालिक और मालिक ने इसके गुरूर को पाश करने के लिए इब्राहिम को भेजा। हर फिरौन ने वक्त के लिए एक मूसा तहलीफ फरमाया। जनाबे वाला जब इंसानियत दम तोड़ने लगी और हासू जहालत ने पंजे गारे तो खालिक करीम ने अपने महबूब को नाजिल फरमाया और इनके दामने मोहब्बत से वाबस्ता होकर अबू बकर, उमर, अली, उस्मान व बुज़ुर्ग जैसे कुदरत के शाहकार जन्म लेने लगे। और जनाबे वाला फिर आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद जब भी कुफर के ऐवानों से कोई साजिश आलम इस्लाम की जानिब बढ़ी तो इसका मुकाबला करने के लिए गाजियान इस्लाम अपने सीने तान कर खड़े रहे। जनाब सदर जब मंगोलो वहशी चंगेजी लहजे में दहाड़ने लगे और नस्ल चंगेज खोपरों के मीनार तमीर करने लगी और मुसलमानों के खून की नदियां बहाने लगी तो यकायक एक नमूदार हुआ जिसका नाम गाजी मोहम्मद अतगुल था। इस मर्द कलंदर ने ताकत में कम होने के बावजूद मंगोलियों और सलीबियों के जालिम मसाल को तोड़ डाला और साबित किया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैब भी लड़ता है सिपाही। और एक ऐसी सल्तनत की बुनियादें न रखी जो आगे चलकर उम्मत मुसलमान का रहबर पेशवा बनी, जिसने बातिल के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया और पूरी कायनात में पहले कुफर के साम्राज्य का सीना चीर कर गाजी अतगन ने आलम इस्लाम को एक नई सिमत अता की और मुसलमानों को यकीन दिलाया कि नूरे हुदा है कुफर की हरकत में हिंदाजन फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जनाबे वाला ये कानून कुदरत है कि जब कभी बातिल सर उठाएगा और उसको निस्तो नाबूद करने के लिए गाजियान इस्लाम सिर्फ नजर आएंगे। इसीलिए तो इल्लामा इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बस से राई, दो आलिम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अलिफ़कार, आज उन्वान गुफ्तगू मुझे दिया गया है वो ना अनवान गुफ्तगू ये तकाजा करता है कि इस उन्वान को सिलेक्ट करने वाली वॉइस ऑफ पाकिस्तान की टीम को भी हराज तहसीन पेश किया जाए। अनवान गुफ्तगू क्या है? अनवान गुफ्तगू जज्बात का प्याम है और मुसलमान मिल्लत को उसके इस्लाफ की जाना मतवज्जो करने का इशारा है। सदर अलिफ़कार, मैं सोच रहा था जिस इकबाल ने ये कहा, ये गादी ये तेरे पुरस्रार बंदे, हमारी मतवज्जो अहद माजी की जाना मजबूर करवाई, उसी इकबाल को मैंने एक मौका पर ये कहते हुए सुना है, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, दहरा क्या है भला अहले कुंदन की दास्तानों में। अलिफ़कार एक जानब और मुस्तकबिल की जानब तवज्जो करने का हुक्म देते हुए चोर नजर आते हैं और दूसरी जानब इस्लाफ की खूबियों को कुछ इस अंदाज से बयान करते हैं कि दिल लहद माजी में खो जाता है। अलिफ़कार, मैं सूरत हाल को देखते हुए जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो ये है कि
کہ علامہ اقبال قوم مسلم کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اے قوم مسلم، غازیان اسلام، ہمارے اسلاف کے کارنامے انہیں صرف سال کے بعد 21 توپوں کی سلامی پیش کرنے اور پدرم بادشاہ بدھ کا راگ اپنانے کے لیے ہرگز نہیں، اور نہ ہی ماضی کی رنگینیوں میں کھو کر مستقبل کے خطرات سے بے خبر رہنے کے ہیں، بلکہ رسول کریم کی امت تیرے اسلاف کے تذکرے اسی لیے ہیں کہ تجھے احساس دلایا جا سکے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اور آؤ دیکھو اپنے اسلاف کی جانب، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم ہاوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدر علی وقار یہ غازی یار ہیں کون جنہیں ڈاکٹر اقبال خدا کے پراسرار بندے کہتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر اقبال اس سوال کا جواب پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ صدر علی وقار ملت کے وہ بہادر سپوت جو مظلوم کی ایک پکار پر میلوں سفر کر کے اس کی دارسی کو پہنچتے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ انہیں نہ مال غنیمت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ قشور کشائی کا مقصد، ان کی حواشات کا محک و مرکز شہادت ہوتا ہے۔ ہاں صدر علی وقار، ہاں ان کی محض و مرکز کا مطلب شہادت ہوتا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عنوان گفتگو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے۔ صدر علی وقار، اگر اسے اسی پرائے میں بیان کروں جس پرائے میں شاعر مشرق نے اسے لکھا تو میری گفتگو خود موت بر ہو جائے گی۔ شاعر مشرق نے ایک نظم اندلس کے میدان جنگ میں طارق کی دعا کے عنوان سے لکھی، جس کا آغاز اسی مصرع سے فرمایا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ جناب صدر، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ گفتگو بھی اسی معتبر ہستی کے نام سے منسوب کر دوں جس کے نام سے یہ مصرع منسوب کیا ہے، یا جناب والا اسلامی تحریک ایک روشن باپ، ایک درشندہ ستارہ، اسلامی دنیا کا ہیرو، ابواج محمدی کا سپاہ سالار طارق بن زیاد۔ جناب صدر، اندلس کی سرزمین پر اترنے والا غازیان اسلام کا لشکر جذبہ شہادت لبریز اپنے سپاہ سالار کے سامنے ہدایت کا منتظر تھا کہ اچانک اسلامی سپاہ سالار کی آواز گونجی، اے دین اسلام کے آدموں، کشتیاں جلا ڈالو، ہم عدل کا پرچم لہرائے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے، اگر یہ نہ کر سکے تو شہادت ہمارا مقدر ہوگی۔ جناب صدر، چند لمحوں میں کشتیوں سے اٹھتا دھواں ہر جانب پھیلنے لگا تھا، یہ کیسا جذبہ تھا جسے دیکھ کے چشم پلک پڑتا، حیرت میں گم تھی پلک کلوز، چوٹیاں لرز اٹھی تھی۔ سپاہ سالار نے اسلام کے ماننے والوں کو شوق شہادت دیکھا تو خدا سے ہمکناں ہوا، وہ کہنے لگا، میرے مولا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت
آش لائی حیاواں میں لالا منتظر لالا کب سے ابا چاہے اس کو انہیں عرب سے کیا تو نے سہران نشی تو کو یکتا حبر میں نظر میں ازان سہر میں حبر میں نظر میں ازان سہر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے بایا انہیں کے جگر سے وہ سوز اس نے بایا انہیں کے جگر سے جناب صدر اس کے بعد اندس کی سرزمین نے سیر فروشی کے وہ ایسے منظر دیکھے جو آج تک نہ بھول سکی وہ مردان خدا ایسی داستان رقم کریے کہ ترین کے صفات صبح قیامت چمکتے رہیں گے صدر علی وقار میں کس غازی کا حوالہ پیش کروں صدر علی وقار میں کس غازی کا حوالہ پیش کروں مولا علی سے لے کر غازی ارطغرل تک قاسم بن محمد بن قاسم سے لے کر سلطان محمود غزنوی تک ایسے لاکھوں دا کے وہ مبارک بندے ایسے لاکھوں دا کے وہ مبارک بندے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہیں اور جن کی شجاعت کو جانے جن کی ہمت کو پرکھیں تو بے اختیار زباں پکارتی ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی اور دل اپنے رب سے وہی جذبات اور احساسات مانگتا ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تربا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تربا دے والسلام شکریہ منزلیں مارتے بڑک رفتار شاہ سواروں کی قسم کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم اپنی ناموس کی خاطر اسلام کے نام کی خاطر کسی جنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی نوع موت کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے مجھے سینہ عرض پر کہیں جگہ نہ ملے طریق کے اوراق سے میرا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے اپنے عظیم باؤ جداد کے نام سے اپنے قبیلے کے نام سے مجھے تا ابد کوئی نہ پہچانے صدر علی وقار یہ جذبہ یہ جنون جو عقل انسانی کو ورتا ہے حیرت میں ڈال دے یہ اس شخص کا تھا جس نے اپنی سانسیں اسلام کی آبادی کے لیے وقف کر دی جو اپنے مقدس مشن سے ہٹ جانے پر موت کو ترجیح دیتا تھا اسلامی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت عثمانیہ پہ بنیاد نو میں اپنے مقدس خون کو بالمحا بہانے والا جس کی جرأت علی کی شجاعت کا عکس تھی اور جس کی تلوار ذوالفقار حیدری کی چمک سے ایسا نور پاتی رہی کہ جس دشمن اسلام نے اس کی جانب دیکھا اس کی آنکھ کچھ اور دیکھنے کے قابل نہ رہی ہاں جناب والا اگوف قبائل کی نسلوں کے مقدر کا ستارہ سلیمان شاہ کا بیٹا غازی ارطغرل جس کی صداقت دیانت جرأت اور اخلاص کو دیکھوں تو یہ الفاظ بے ساختہ زبان پہ آتے ہیں کہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی علی وقار سلطنت عثمانیہ پہ نگاہ ڈالنے سے پہلے ایک نظر غازی ارطغرل کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اس کی جد و جہد کا اندازہ لگائیے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ غازی ارطغرل جیسا مجاہد یہ کہنے میں حق بجانب تھا کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاہوں پہ لہو چھڑکا ہے پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی صدر علی وقار ایک طرف مغولوں کی وحشت اور دوسری طرف صلیبی سازشیں گنتی کے نفوذ پر مشتمل ایک قبیلہ سینکڑوں غداروں کی موجودگی میں ایک عزم لے کر چلتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو مجھے بے ساختہ رب کریم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جسے اقبال نے یوں بیان کیا
फजाएं बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। जनाब सदर, मैं ये बात भी हिंद के मारू पे वाजिया कर देना चाहती हूँ कि गाजी अर्तुगरुल से हमारा ताल्लुक महज ड्रामाई हरगिज नहीं है। हमारे माँ बहन जो उल्फत है हमारी नसों में बहने वाले ईमान की बदौलत है, मगर सदर अली वकार ये रम्ज भी अहले मोहब्बत ही समझ सकते हैं कि अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जिनू इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। सदर अली वकार, आज इस्लाम के नहलस्तान की उजड़ी हालत देखती हूँ, अपने इस्लाम से रूहानी दौरी को महसूस करती हूँ तो अपने करीम रब से दुआ को हाथ उठा देती हूँ कि ऐ मेरे करीम अता इस्लाम का जज्बा दरू कर, शरीके जुमर आए ला यहज़नू कर, हिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर। वस्सलाम, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वकार, आज जो अनवान गुफ्तगू मुझे दिया गया है वो अनवान गुफ्तगू ये तकाजा करता है कि इस अनवान को सिलेक्ट करने वाली भाई साहब पाकिस्तान की टीम को भी हराज तहसीन पेश किया जाए। अनवान गुफ्तगू क्या है? अनवान गुफ्तगू जज्बात का प्याम है। अनवान गुफ्तगू जज्बात का प्याम है और मिल्लत इस्लाम को उसकी जानब मतवज्जो करने का इशारा है। जनाब वाला, मैं सोच रहा था जिस इकबाल ने ये कहकर ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे हमारी तवज्जो अहद मादी की जानब मबजूल करवाई, उसी इकबाल को मैंने एक मौका पर ये कहते हुए सुना है, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, दहरा क्या है भला अहले कुहन की दास्तानों में। सदर अली वकार एक जानब वो मुस्तकबिल की जानब तवज्जो करने का हुक्म देते हुए चोट करते नजर आते हैं और दूसरी जानब इस्लाफ की खूबियों को इस अंदाज से बयान करते हैं, दिल अहद माजी में खो जाता है, दिल अहद माजी में खो जाता है। सदर अली वकार, मैं सूरत हाल को देखते हुए जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो ये है कि इकबाल कौम मुस्लिम को ये पैगाम देना चाहते थे, ए कौम मुस्लिम, गाज़ान इस्लाम हमारे इस्लाफ के कारनामे इन्हें सिर्फ साल के बाद 21 तोपों की इस्लामी पेश करने और कितना बादशाहबूत का राज हल पाने के लिए हरगिज नहीं और ना ही माजी की रंगीनियों में खोकर मुस्तकबिल के खतरात से बेखबर रहने के हैं, बल्कि रसूल करीम की उम्मत तेरे इस्लाफ के तज़किरे इसीलिए है कि तुझे एहसास दिलाया जा सके कि थे तो वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़रे फरदा हो। और आओ देखो अपने इस्लाफ की जानब, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर तुम हवार हुए तार के कुरान पर। सदर अली वकार, ये गाज़ियार हैं कौन? जिन्हें डॉक्टर इकबाल खुदा के पुरस्कार बंदे कहते हैं। अगर डॉक्टर इकबाल से इस सवाल का जवाब मांगे तो वो फरमाते हैं, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं का दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। सदर अली वकार, मिल्लत इस्लामिया का मुहद्दिस पूत जो मजलूम के एक पुकार पर उसको सब्र करके उसकी दाद रसी को बोलते हैं, जो अपनी जानों का नजराना अपने रब करीम की बारगाह में पेश करने के लिए मैदान कारज़ा में उतरते हैं। उन्हें नामाले गनीमत की तरह होती है, कशूर कशाइन का मकसद उनकी हवाशात का महकूमत जो का शहादत होता है। हाँ सदर अली वकार ऐसे पाकबाज मुजाहिदों के ज़ख्मों से रास्ता लहू का एक कतरा मिल्लत को एक नए रूप में देता है। सदर अली वकार ऐसे बाहिम्मत पुसूतों की गिरदरा को अपनी आंखों से लगाना और उनके तज़किरों को अपनी यादों के दरीचे में बिछाना यकीन खुदा की हाथ से बस कम नहीं। मगर सदर अली वकार, मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा
इस अमर की जरूरत है, इससे ज्यादा इस अमर की जरूरत है कि गाज़ा और इस्लाम की सीरत का अपना मसनून ऐन बनाया जाए और उनके छोड़े हुए निशाने कदम को अपनी मंजिल। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इसतराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक के तू किताब हवा है मगर साहिब किताब नहीं। की ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई दो आलम से करती है बेगम दिल को अजब चीज है लज्जत आशिनाई। नाबे सदर अतुल गाजी जिन्हें अहराजे तफसील पेश करने के लिए इस मुकाबले का इनाकात किया गया है। बिला शोबा मर्दाने पाकबाज में से एक थे जिनके अमल का मियार मुस्तहक़े वक्त नहीं रज़ाए इलाही हुआ करता है और जो इस पे यकीन और कामिल रखने वाले इस्लाम के मुजाहिद थे कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे अंदाज़ा नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे अंदाज़ा फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। नबी सदर सच कहूँ तो आजकल हमारा वतन है सयादा के हमारी गन्ने पर से बुलंद हो गई है। काश हम अपने माजी को फकत याद ही न करें, इसके तज़किरों में लफ्ज़ी तौर पे दुख ही न रहे, बल्कि नबी सदर मैं यज़मान अहले इस्लाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ जो अब्दुल गाजी और इसकी नस्ल को अपना हीरो माना करते थे कि आओ अपने इस्लाम की इज्जत से रहनुमाई पाकर सरबलंदी के लिए जान जाने अफरीद के सुपुर्द करते ताकि हमारा ताल्लुक अपने इस्लाम के साथ और भी मजबूत और तर हो जाए। नबी सदर गुफ्तगू वाइंड अप करती है मुस्तवा के साथ ता इस्लाम के जज्बा बरूक़ शरीके ज़ुमराए ला ज़हनू कर हिंद की गुठियाँ सुलझा चुका है मेरे मौला मुझे सहबे जन्नों कर और जिसकी तलवार जुल्फ़कार हैदरी की चमक से ऐसा नूर पाती रही कि जिस दुश्मने इस्लाम ने इसकी जानब देखा इसकी आंख कुछ और देखने के काबिल ना रही। हाँ जनाबे वाला, अगोस कबाइल की नस्लों के मुकद्दर का सितारा सुलेमान शाह का बेटा गाजी अर्तुगरुल, जिसकी सदाकत दयानत जुरत और एहलास को देखूं तो अल्फाज बेसाख्ता ज़बान पे आते हैं कि गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े हुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। आलिमकार सल्तनत उस्मानिया पे निगाह डालने से पहले एक नजर गाजी अर्तुगरुल की जिंदगी का मुतालिया कीजिए, इसकी जद्दोजहद का अंदाजा लगाइए तो आप ये महसूस करेंगे कि गाजी अर्तुगरुल जैसा मुजाहिद ये कहने में हक बजानिब था कि हमने सूखी हुई शाहों पे लहू छिड़का है, फूल अगर अब भी ना खिलते तो क्यामत होती, फूल अगर अब भी ना खिलते तो क्यामत होती। सदर अलिमकार एक तरफ मगोलों की वहशत और दूसरी तरफ सलेबी साजिशें, गिनती के नफूस पर मुश्तमिल एक कबीला सैकड़ों गिरदारों की मौजूदगी में एक अज़म लेकर चलता है और कामयाब हो जाता है। जनाब सदर एक अज़म लेकर चलता है और कामयाब हो जाता है। मुझे बेसाख्ता रब करीम का वो वादा याद आता है जिसे इकबाल ने यूं बयान किया कि फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी, फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी। जनाब सदर मैं ये बात भी हिंद के मारू पे वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि गाजी अर्तुगरुल से हमारा ताल्लुक महज ड्रामाई हरगिज नहीं है। हमारे माबैन जो उल्फत है हमारी नसों में बहने वाले ईमान की बदौलत है, मगर सदर अलीकार ये रम्ज़ भी अहले मोहब्बत ही समझ सकते हैं कि अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनूं, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनूं, इश्क वाले हैं वह जो हर चीज़ लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। सदर अलिकार आज इस्लाम के नहलस्तान की उजरी हालत देखती हूँ, अपने इस्लाम से रूहानी दौरी को महसूस करती हूँ तो अपने रब करीम से दुआ को हाथ उठा देती हूँ कि ऐ मेरे करीम
عطا اصلاح کا جذبہ درو کر، شریک زمرائے لا یحزنو کر، ہرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، ہرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ واسلام، شکریہ۔